Hello everyone. Let's continue with the discussion of class 10 mathematics sample paper. Question number 13. If one zero of a quadratic polynomial kx square plus 3x plus k is 2, then value of k is. We all know that zero of polynomial means when I will put that value in the given equation, our answer will be equal to 0. So what I will do, in place of x, I will simply put 2. Now let's solve our question. 2 whole square means 4k plus 3 2s are 6 plus k is equal to 0. Now 4k plus k will be equal to 5k, and when I will shift this plus 6 to the other side, it will become minus 6. So the value of k is minus 6 over 5. With this question ends here. Let's move towards next question, question number 14. So in our question, we have to find the value of centroid of the triangle. We all know that centroid is nothing but the point where its three median intersect. Here is the formula. Simply add the coordinates of the vertices to find the value. Here the value of x1 is 3, x2 is minus 8 and x3 is 5, y1 7, y2 6 and y3 is 10. Let's put this value in the given formula and let's solve this. Plus 3 minus 8 becomes minus 5. Minus 5 and plus 5 get cancelled. So here x coordinate is 0. Minus 7 plus 6 becomes minus 1. Minus 1 plus 10 becomes 9. 9 divided by 3 becomes 3. So the centroid coordinates are 0, 3. With this question ends here. Next question. The zeros of polynomial x square minus 3x minus m plus 3 are zeros of polynomial or the roots of polynomial. Firstly, what I am going to do, I will simply compare my given equation with the general equation. Our general equation is x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta. Here this alpha plus beta is sum of root and alpha into beta is product of root. Now compare your values from the given equation. Alpha plus beta is equal to 3. Here negative symbols are common, so I am not considering negative symbol. Alpha plus beta is equal to 3. And alpha plus alpha into beta. Here positive symbol is there, but in the question negative symbol is there. So now I have to consider the negative symbol. So means alpha into beta will be equal to minus m plus 3. Okay. Now I have to find two numbers whose sum is 3 and product is minus m plus 3. Let me show you how we can find that. Actually these two numbers are minus m. Let me show you. So put this value in alpha plus beta. Suppose alpha value is minus m plus symbol and beta value is m plus 3. I have to prove that this is equal to 3 now. So plus m minus m get cancelled. What I am getting 3. Okay. And then next alpha into beta. Multiply minus m alpha because I have considered and beta is m plus 3. So you can clearly see. Okay. So means our roots are minus m and m plus 3. Now for the verification part, although we have already found our answer, but for the verification what you can do, you can simply put these values in the given equation to verify that whether you are getting 0 in as the final answer or not. Because 0 of polynomial means कि जैसे आप उसकी value equation में put करोगे answer क्या आ जाए 0 आ जाए. So here I have already shown the calculation. Minus m whole square becomes plus m square. Minus minus becomes plus 3m. Minus
m into plus m becomes minus m square, minus m plus 3 becomes minus 3. कैलकुलेट किया, आंसर किसके इक्वलेंट आ गया, 0 के. नेक्स्ट इक्वेशन में पुट किया m प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 3 m प्लस 3 माइनस m प्लस 3. इन तीनों के अंदर ही क्या है, m प्लस 3 कॉमन है, कॉमन ले लिया आपने. एक m प्लस 3 चला गया यहाँ से, तब भी एक m प्लस 3 बचा. यहाँ से m प्लस 3 गया, क्या बचा आपके पास यहाँ पर, माइनस का 3 ये रहा. ठीक है. नेक्स्ट नेक्स्ट में से भी m प्लस 3 चला गया, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, माइनस का m. अब देखो, प्लस का m माइनस का m कैंसिल, प्लस का 3 माइनस का m कैंसिल. 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर क्या आएगा, 0. तो मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया है कि माइनस का m और जो हमने नेक्स्ट कंसीडर किया था m प्लस 3, वही क्या है, इसके 0 ऑफ पॉलिनॉमियल भी हैं. ऑल्दो आपको एग्जाम में इतनी कैलकुलेशन करके देखने की जरूरत नहीं है. Let's move towards next question. The value of k for which the system equations x plus y minus 4 equal to 0 and 2x plus ky is equal to 3 has no solution. ये टेबल हम सभी को लर्न है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. यहाँ पर चेक कीजिए, नो सॉल्यूशन इक्वेशन क्या है उसकी, रेशियो ऑफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 का इक्वेशन चल रहा है हमारे पास. तो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. कैलकुलेट करते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज को. देखो a1 का वैल्यू, a2 का वैल्यू 2 आ गया आपके पास. सेम वे b1 का वैल्यू 1 आ गया, कॉफिशिएंट ऑफ y आप कैलकुलेट करेंगे, और b2 का वैल्यू कॉफिशिएंट ऑफ y जो कि k है. c1 का वैल्यू माइनस का 4, c2 का वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है, प्लस का 3 दूसरी तरफ है, तो लेकिन जनरल फॉर्म में क्या है, c लेफ्ट हैंड साइड पर प्रेजेंट है, तो प्लस का 3 जब दूसरी तरफ आएगा किस में चेंज हो गया, माइनस के 3 में. तो c2 का भी वैल्यू क्या रहेगा आपके पास, माइनस का 3 रहेगा. गिवन इक्वेशन के अंदर वैल्यू को पुट कीजिए, 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में k नॉट इक्वल टू 4 अपॉन में 3. इस वाले पार्ट को मैंने कंसीडर किया, 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में k, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, k की क्या वैल्यू आ गई आपके पास, 2. सो और हमें यही चीज कैलकुलेट भी करनी थी. So let's move towards next question. If one root of quadratic equation ax square plus bx plus c is 0, so is the reciprocal of the other, then ये 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है. सबसे पहले मैंने कंसीडर कर लिया कि जो इन्होंने बोला है एक रूट, वो मैंने p कंसीडर कर लिया, आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हो. क्वेश्चन में गिवन है कि पहला रूट दूसरे वाले का रेसिप्रोकल है, सो अगर मैंने फर्स्ट रूट p कंसीडर किया तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में p हो जाएगा. ठीक है. अब एक अगेन फॉर्मूला चैप्टर में ही गिवन है कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होते हैं उसका फॉर्मूला क्या है, अल्फा इंटू बीटा का कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो अब इक्वेशन में चेक करो, कांस्टेंट टर्म की जगह पर बेसिकली आपके पास c ही है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा है, a लिखा है. इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मैंने फर्स्ट p कंसीडर किया था, उसका रेसिप्रोकल क्या आ गया, 1 अपॉन में p आ गया, p से p कैंसिल हो गया, सो 1 इज इक्वल टू c अपॉन में a, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो c किसके इक्वल आ गया, a के इक्वल आ गया. सो दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन मेरे पास यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी मेरे पास यहाँ पर करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन फॉर पेयर ऑफ इक्वेशन 3 raised to power x plus y is equal to 81 and 81 raised to power x minus y is equal to 3 is. So सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिखी है मैंने यहाँ पर. नाउ 81 वी ऑल नो, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 81 आ जाएगा. इस इक्वेशन में ध्यान से देखो बेस सेम है, तो अगर बेस सेम है पावर भी कैसी होगी इनके आपस में, इक्वल होगी. तो मेरे पास क्या आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये क्या आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 1. सेम वे नेक्स्ट पार्ट को भी सॉल्व करेंगे. 81 का पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3,
81 अगेन कैसे लिख सकते हो, 3 raised to power 4 x माइनस का y ब्रैकेट में एज इट इज चल रहा है, बेस सेम है, पावर विल बी सेम, 4 को मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया आपके पास, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आपको इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है ताकि क्या आप फाइंड आउट कर सके, सॉल्यूशन फाइंड कर सके, मतलब x और y की वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सके। सो आप कोई सा भी मेथड, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, टोटली योर चॉइस। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूंगी, इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई करूंगी 4 से, 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 16। उसके बाद क्या कर दूंगी, इन दोनों को आपस में ऐड कर दूंगी। सो जैसे मैं इनको ऐड करूंगी, देखो +4 एंड -4 क्या हो रहा है, यहाँ से कैंसल आउट हो रहा है मेरे पास, ठीक है, कैंसल आउट हो रहा है मेरे पास। और फर्दर कैलकुलेशन देखो, प्लस का 4 क्या हो गया 8x, प्लस का 16 + 1 क्या हो गया 17, x का वैल्यू क्या आ गया 17/8। अब जो वैल्यू आपके पास यहाँ से आई है उसको हम पुट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में। सो मैंने यहाँ पर कंसिडर की थी x + y = 4 वाली इक्वेशन, x की जगह पर मैंने मेंशन कर दिया 17/8, प्लस का y = 4, प्लस का 17/8 दूसरी तरफ शिफ्ट हुआ, माइनस में चेंज हो गया, कैलकुलेशन की और मेरे पास y की भी वैल्यू आ गई। सो यही क्या है मेरे पास, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन है x और y की वैल्यूज। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन बेस्ड ये क्वेश्चन है। सो असर्शन है मेरे पास 4x² - 12x + 9 = 0 हैज रिपीटेड रूट्स। रिपीटेड रूट्स मतलब जो इसके दो रूट्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। रीजन क्या है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 हैज रिपीटेड रूट्स इफ discriminant d is greater than 0। लेट्स चेक। सबसे पहले एक टेबल में यहाँ पर आपको शो कर रही हूँ, इन केस अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता आप याद कर सकते हैं कि अगर जो आपके पास d है जिसको आप कैलकुलेट करते हैं b² - 4ac वो ग्रेटर देन 0 आता है तो आपको रियल और डिस्टिंक्ट रूट मिलते हैं। अगर इक्वल टू 0 आता है तो रियल और इक्वल रूट मिलते हैं, लेस देन आता है तो आपको कॉम्प्लेक्स और डिस्टिंक्ट रूट मिलते हैं। एक चीज ध्यान रखनी है, हमारे पास क्वेश्चन में था, असर्शन में था रिपीटेड रूट्स। रिपीटेड रूट्स किस केस में मिल रहे हैं, इक्वल वाले केस में, जहां पे क्या होना चाहिए था, d इज इक्वल टू 0 आना चाहिए था, लेकिन रीजन में गिवन है d इज ग्रेटर देन 0। तो यहीं से क्लियर हो गया कि जो मेरे पास इन्होंने रीजन दिया है वो कैसा है, फॉल्स है, ठीक है। सो अभी सॉल्व करते हैं। देखो b² - 4ac मैंने सबसे पहले कैलकुलेट कर लिया। सो कंपेयर किया मैंने इक्वेशन के साथ, x² का कॉफिशिएंट a होता है वो उसकी वैल्यू 4 है, x का कॉफिशिएंट b होता है जिसकी वैल्यू -12 है और c की वैल्यू 9 है। फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज को पुट किया, -12 का होल स्क्वायर -4 × 4 × 9, सॉल्व किया, मेरे पास क्या आ गया 0 आ गया। तो इसका मतलब असर्शन जो कि गिवन थी, रूट्स रिपीटेड हैं, यस दैट इज ट्रू, रूट्स रिपीटेड हैं बिकॉज जब d इज इक्वल टू 0 है तो उसी केस में क्या मिलते हैं, रियल और इक्वल या फिर रिपीटेड रूट्स मिलते हैं, तो असर्शन तो ट्रू है। लेकिन रीजन कैसा है, यहाँ पर फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि रीजन था कि d की वैल्यू ग्रेटर देन होती है तब वो रिपीटेड रूट्स देता है, तो रीजन फॉल्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स वाला करेक्ट है। Now let's move towards next question. The HCF of two number is 5 and their product is 150, then their LCM is 30। ये assertion है और reason है for any two positive integer a and b, HCF plus LCM is equal to a into b। Let's solve this question। हमें already एक formula पता है that LCM, product of LCM and HCF is equal to product of the given numbers। लेकिन रीजन में क्या लिखा है, प्लस का सिंबल है, यहां से फिर से पता चल गया रीजन इज फॉल्स। अभी असर्शन को चेक करते हैं क्या वो करेक्ट भी है या फिर नहीं है। एलसीएम मुझे कहा गया है 30 आना चाहिए मेरे पास, ठीक है। लेट्स सॉल्व आवर क्वेश्चन। एलसीएम, एचसीएफ का वैल्यू 5 गिवन है,
प्रोडक्ट ऑफ नंबर 150 गिवन है, 150 को 5 से डिवाइड करूंगी, मेरे पास क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो असर्शन कैसा हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया, लेकिन रीजन फॉल्स है। सो विद दिस वीडियो ends here. Thank you very much.